جنوبی پنجاب میں کورونا کو تیزی سے شکست ہونے لگی۔ ڈی جی خان قرنطینہ میں 829 میں سے 825 زائرین کورونا وائرس کو ہرا کر گھروں کو چلے گئے۔ رحیم یار خان میں کورونا کے 733 افراد صحت مند قرار۔ ترکی اسپتال مظفر گڑھ میں 22 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ بھکر میں گورنمنٹ کامرس کالج قرنطینہ سینٹر کے 45 افراد کورونا کو پچھاڑنے میں کامیاب۔ کہروڑ پکا تبلیغی مرکز میں مزید 25 افراد نے کورونا وائرس کو مات دے دی۔ خانیبال میں کورونا کا شکار پہلا مریض صحت یاب۔ ڈی ایچ کیو میاوالی میں زیر علاج مریض کی رپورٹ منفی آ گئی۔ رحیم یار خان میں لیول 3 لیب بنے گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈیرہ غازی خان آمد۔ اگلے 5 دنوں میں مزید 5000 ٹیسٹ کرنے کا عندیہ۔ کہا کہ جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر میں 11 فیلڈ اسپتال تیار ہو چکے ہیں۔ ڈی جی خان سپورٹس اسٹیڈیم میں کورونا فیلڈ اسپتال کا جائزہ لیا۔ راجن پور قرنطینہ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ مناسب انتظامات کرنے پر ضلع انتظامیہ کو شاباش دی۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے ٹیسٹ کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کورونا ٹیسٹ میں اضافے کے لیے پنجاب میں مزید 4 لیبز بنانے کی منظوری دے دی۔ ایک لیبارٹری رحیم یار خان میں بنے گی۔ 3 دن میں ڈیرہ غازی خان لیبارٹری کو فنکشنل کرنے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ کہا پنجاب میں اب تک 64,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ بہاولپور میں کورونا کے مریضوں کے لیے فیلڈ اسپتال بنانے کا فیصلہ۔ گورنمنٹ ڈگری کالج اسپیشل ایجوکیشن میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا جائے گا۔ فیلڈ اسپتال میں سیریس حالت سے پہلے کے مریضوں کا چیک اپ ہوگا۔ ادھر ڈاکٹرز ریفارمر کا نشتر بایو سیفٹی لیب 3 لیبارٹری جلد فنکشنل کرنے کا مطالبہ۔ رمضان المبارک سے قبل کورونا ٹیسٹ منفی آنے والے اراکین گھروں کو جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دیں۔ کورونا وائرس پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل۔ کمشنر ملتان شان الحق نے ڈپٹی کمشنر کو 15 رکنی کمیٹی کی کمانڈ سونپ دی۔ کمیٹی کورونا وبا کو کنٹرول کرنے والے لاہے عمل طے کرے گی۔ ادھر رمضان میں نماز تراویح کے انتظامات کی مانیٹرنگ کا حکم دیا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ رمضان المبارک میں سحری کے اوقات میں دودھ، دہی اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ ہوٹل اور ریسٹورانٹ سحری اور افطاری کے دوران بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ انڈسٹریل یونٹ کو مرحلہ وار کھولنے کے حوالے سے امور پر غور۔ خلاف ورزی پر کارروائی کا عندیہ۔ رمضان میں عبادت گاہوں کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ آر ٹی او بہاولپور زبیر دریشہ کا ویڈیو لنک کانفرنس میں ڈویژن بھر کے ڈی پی اوز کو حکم۔ ادھر ڈی سی خانیوال کا کبیروالا کی مساجد اور امام بار گاہوں کا دورہ۔ کورونا سے بچاؤ کے تمام ایس او پیز کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز کے لیے لیگی قیادت کا احسن قدم۔ مرکزی قیادت نے بھکر کے مسیحاؤں کے لیے پی پی ای کٹس بھجوا دیں۔ کٹ صدر وائریے ڈاکٹر عامر اقبال کے حوالے کر دیں۔ ادھر وکٹوریہ اسپتال بہاولپور نے 1000 N95 ماسک خرید لیے۔ کلورین پانی کا اسپرے صحت کے لیے مضر قرار۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کر دیا۔ جنوبی پنجاب کی ویسٹ کمپنی نے پاکستان میں پہلی بار صحت افزا اسپرے بنا لیا۔ سی او احسن رشید نے کہا کہ اسپرے سے انسانی صحت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ شیخ زید میڈیکل کالج میں میڈیکل ٹیچنگ ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ انتظامیہ سے ڈاکٹر کے ٹیسٹ کروانے کی اپیل۔ پاکستان فلور ملز کا محکمہ خوراک کی پالیسیوں کے خلاف سوموار سے ہڑتال پر جانے کا اعلان۔ ہنگامی اجلاس میں فیصلہ۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت 72 گھنٹوں تک سٹاک رکھنے کی اجازت دے رہی ہے۔ پرمٹ ہونے کے باوجود مال راستے میں روکنا زیادتی ہے۔ مطالبات منظور نہ ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ذخیرہ اندوزی کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا۔ ذخیرہ اندوز 3 سال جیل جانے کے لیے ہو جائیں تیار۔ چینی، گندم، آٹا سمیت 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی ضمانت نہیں ہوگی، سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ ادھر میاں چنو میں سپر اسٹور پر ذخیرہ کی گئی چینی کی 290 بوریاں برآمد، مالک گرفتار۔
राजनपुर से गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम, 3 ट्रकों पर लदी 2000 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। थाना फतेहपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ीदार तबके की माली मुआवनत करने का फैसला। बेरोजगार मजदूरों दिहाड़ीदार का डेटा इकट्ठा करने का काम तेजी से जारी। आइंदा चंद रोज में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी जाएगी। बस हमें रोटी चाहिए और कुछ नहीं। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में दिहाड़ीदार तबका कोरोना के बजाय भूख से लड़ने लगा। एहसास प्रोग्राम में इमदाद न मिलने पर शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कमिश्नर ऑफिस मुल्तान के बाहर धरना। बिहाड़ी में मजदूरों का गले गले में रोटियां लटकाकर एहतजाज। मुजाहिरीन का इमदादी रकम की फराहमी का मुतालबा। एहसास कफालत प्रोग्राम ने घरेलू मसाइल पैदा कर दिए। 2 बीवियां रखने वाले मरहूम के नाम पर आए पैसे पहली बीवी ले गई। शहरी सौतेली मां के खिलाफ फरियाद लेकर रोही न्यूज के ऑफिस पहुंच गया। डीजी खान के कबायली इलाकों में एहसास कफालत सेंटर्स ही ना बन सके। राखी मुंह, राखी घाट, श्री रोगन समेत दीगर इलाकों में सेंटर्स न होने पर कबायली अवाम सरापा एहतजाज। कहा, लॉकडाउन की वजह से सवारी नहीं मिलती, रोजाना पैदल कैसे जाएं। 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बहावल नगर के डेंगी सेंटर पर पेट्रोल वर्कर्स का एहतजाज। मुलाजिमीन घरेलू हालात बताते हुए रो पड़े। वजीर आजम हमारी हालत जार पर रहम खाएं और मसाइल हल करवाएं। महकमा खुराक ने मुल्तान डिवीजन ने 2,06,000 बोरी गंदम खरीद ली। तहसील सदर और सिटी में गंदम वसूली का सिलसिला शुरू होगा। उधर कबीरवाला में 6 खरीदारी मरकज कायम। बहावलपुर डिवीजन में 24,50,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई। गंदम खरीदार का हदफ 8.5 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का कहना है कि टारगेट का 12% हिस्सा खरीद चुके हैं। किसानों पर बारदाना की तकसीम पर कोई पाबंदी नहीं। खानेवाल में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी और डीपीओ ने मुहिम का इफ्तिताह किया। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर ने गंदम का वजन भी चेक किया। दरियाए चनाब के सैलाब से मुतासरा किसानों के नुकसानात के इजाले के लिए सर्वे मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून के हमरा मौजा, शीनी मियानी, जलालपुर, पीरवाला का दौरा। मुतासरा काश्तकारों को उनका हक दिलाने की यकीन दहानी कराई। सेक्रेटरी खुराक पंजाब वकास अली महमूद का फोर्टाबाद का दौरा। मुशीर ज़राअत सरदार अब्दुल हई दस्ती का मुजफ्फरगढ़ के गंदम खरीदारी मराकज का दौरा। मरकज में कटौती की शिकायत पर अमले को वार्निंग दी। लैया में बारिशों और तेज हवाओं ने बागात को तबाह कर दिया। फूल और फल गिरने से बागबान को भारी खसारे का सामना। कहा कि घर की तमाम अशिया बेचकर बागात पर लगाई मगर मौसम ने तबाही भेज दी। हुकूमत बाग मालिकान के लिए इमदाद का ऐलान करे। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लीमू की कीमत ने शहरियों के दाम खट्टे कर दिए। लीमू 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक और लहसुन की ट्रिपल सेंचुरी, अरबी 200 और आलू 70 रुपए फी किलो में बिकने लगा। बढ़ती महंगाई पर शहरी परेशान। सूबाई वजीर पंजाब लाइव स्टॉक एंड डेयरी हसनैन बहादुर दरेशक का जामपुर का दौरा। बॉयज मॉडल हाई स्कूल सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी एमएनए अमजद अली खान का मियावाली एहसास सेंटर का दौरा। शहरियों के मसाइल भी सुने। टिड्डी दल के खतरे से निपटने के लिए महकमा लाइव स्टॉक इन एक्शन। टिड्डी दल के हमले बारे हसास इलाकों में जानवरों की गिनती की जाए। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नदीम इरशाद कियानी की महकमा ज़राअत के साथ भी मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। लैया में टिड्डी दल के लार्वे के खात्मे के लिए चौपारा में ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर असफर जियान ने ऑपरेशन के जायजे के लिए नवाकोट का दौरा किया और टिड्डी दल के लार्वे के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी।
जाली और नाकिस बीज बनाने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। कुछ जाली परमिट्स पकड़े गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर शाहिद इमरान मारक का कहना है कि सीड कंपनी के मालिकान के साथ मुलाकात की है, उन्हें सहूलियात देंगे। बहावलपुर में मुमकिन सैलाबी खदशे के पेश नजर महकमा लाइफ स्टॉक के इकदामात, बेट के इलाकों में प्री फ्लड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली दरेशक का डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, शहरियों के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी और डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का कबीरवाला की मसाजिद और इमाम बारगाहों का दौरा, इंतजामिया को बुजुर्गों और बच्चों को आने से रोकने की हिदायत की। मरकजी रहनुमा जहांगीर खान तरीन से मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुअव्विन खुसूसी बराए औकाफ सैयद रफाकत अली गिलानी और मुअव्विन खुसूसी बराए खुराक खुर्रम सुहेल लगारी भी मुलाकात में शरीक थे। मुल्तान की डिविजनल इंतजामिया लॉकडाउन से मुतासर होने वाले तबकात का सहारा बन गई। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने बेस्ट पार्क के साथ मिलकर ख्वाजा सराओं में राशन तकसीम किया। उधर लोधरा पुलिस की जानिब से गरीब अफराद में राशन तकसीम। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब रिसर्च स्कॉलर यूनिटी मास्क और राशन तकसीम किया। उधर जमीयत उलमा पाकिस्तान रहीम यार खान ने भी राशन तकसीम किया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का कल से अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स खोलने का फैसला, मखसूस स्टाफ के साथ फर्जों और इंतकालात का इजरा किया जाएगा। तमाम स्टाफ को एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। महकमा बल्दियात पंजाब के पीपीएससी के जरिए मुंतखब होने वाले ग्रेड 18 के 9 नए अफसरान लोकल गवर्नमेंट सर्विस में तैनात कर दिए गए। मोहम्मद शफीक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बहावलपुर, मोहम्मद नसरुल्लाह मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर मुल्तान तैनात। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब का नए अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। उधर जावेद अख्तर महमूद सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब कोऑर्डिनेशन तैनात, चार्ज संभाल लिया। लॉकडाउन के बायस पीएचए मुल्तान के मार्केटिंग अहदाफ भी मुतासर। पीएचए मुल्तान गुज़िश्ता और रवा माह के बिलबोर्ड की रिकवरी के अहदाफ हासिल न कर सका। डीजी कमर जमान कैसरानी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रिकवरी में 70% कमी आई है। डीजी खान राखी गाज नीली पहाड़ी पर मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का खदशा, कमांडेंट सैयद मूसा रजा ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की ड्यूटी लगा दी। रोड को हमा वक्त क्लियर रखने के अहकामात जारी। सखी सर्वर में रोही की खबर पर एक्शन, एनएचए ने सखी सर्वर पुल की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू करा दिया। रोड की तामीर और गड्ढों को पुर करने के लिए लेबर और मशीनरी दोनों पहुंच गई। अवामी समाजी हलकों का रोही को खिराज तहसीन। डीजी खान में थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, मुलजमान गिरफ्तार। डकैती और चोरी शुदा 2 अदद मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात समेत रिकवरी की रकम 6 लाख रुपए बरामद करके असल मालिकान के हवाले की। मैपको का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, अलीपुर में 30 बिजली चोर पकड़ लिए गए। मुकदमा दर्ज करके 10 लाख का जुर्माना आयद किया। मीर शकील की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। लिया में मुस्लिम लीग नून के ज़रिए तमाम प्रेस क्लब में एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कोरोना के बायस थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून की एहतियात की कमी, दावत इस्लामी का रहीम यार खान केरोड़ पक्का समेत दीगर शहरों में ब्लड कैंप का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। मरीज के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया, कपड़ों और चादरों को जलाने या जाया करने की जरूरत नहीं। उन्हें दस्ताने पहनकर हाथ लगाया जाए, क्लोरीन मिले पानी से धोया जाए। मरीज को देखते हुए फास्टी किट जरूर इस्तेमाल की जाए। मिर्सर अस्पताल मुल्तान में एहतियाती तदाबीर पर मबनी एसओपीज जारी।
बहावलपुर में डेंगू के मुमकिन खतरे के पेश नजर इंतजामात शुरू। विक्टोरिया अस्पताल में 8 बेड्स पर मुश्तमिल एचडी यूनिट कायम, डॉक्टर्स भी तैनात। पंजाब के पहले इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल स्क्रीनिंग काउंटर का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, सीओ हेल्थ और एमएस ने डीएचक्यू में काउंटर का इफ्तिताह किया। मुल्तान मोटरवे पुलिस की कोरोना से बचाव बारे आगाही मुहिम। ड्राइवर्स में मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पैम्फलेट तकसीम किए। उधर मुल्तान कचहरी के मेन गेट पर कोरोना प्रोटेक्शन वॉक थ्रू गेट नस्ब। कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में भी जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल डिसइंफेक्शन गेट इंस्टॉल कर दिया। लिया में डिप्टी कमिश्नर असफर ज़ियान ने ग्रैंड शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। चक 149 में 13 एकड़ पर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। खानेवाल में रेलवे कॉलोनी के रिहायशी 2 माजूर बहन भाई किसी मसीहा के मुंतजिर। दोनों की कफालत करने वाली बेवा मां 10 रोज कबल दुनिया से कूच कर गई। माजूर यतीम मस्कीन बहन भाइयों की मुखैर हजरात और आला हुकाम से मदद की अपील। लॉकडाउन के बायस गरीब और दिहाड़ीदार तबका रुल गया। मियांवाली में मजदूरी न मिलने पर शहरी परेशान। मेहनत मजदूरी करके जहनी माजूर बच्चे बच्चियों और बीवी का पेट पालने वाला मसीहा का मुंतजिर। मजदूरी न मिलने पर बच्चे फाका खुशी पर आ गए। नूर मोहम्मद की मुखैर हजरात से इमदाद की अपील। लिया में रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हादसे में बेहोश हो जाने वाले शहरी शौकत अली से मिलने वाली रकम और जरूरी कागजात लवाहिकीन के हवाले कर दिए। अहल खाना ने रेस्क्यू एहलकारों के मशकूर का इजहार किया। और माह सयाम में कौन बनेगा रोही की आवाज। रोही नात मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नात का हजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।